from the guts. हमारे दादा दादी सब लोग बोलते थे अपना पेट साफ रखा करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया पेट साफ नहीं है. But ideally that is true. Now allopathy, now we have come into understanding and we have made. Yeah. And this colon hydrotherapy will make your gut like a reset button. You put it on your phone. So fresh. You don't want a disease, clean your guts. Right. You are already diseased, clean your gut. You have recovered from a disease, you don't want a disease again, keep your gut clean. Far infrared sauna bhi I've heard is Far very good. infrared sauna is very popular abroad. Far infrared has a deeper penetration. Okay. It goes deep inside your skin and up to the the bones. subcutaneous fat. These cases brought me international icon award. मुझे थाईलैंड में awards मिला. फिश स्किन ग्राफ्टिंग जो इंडिया में पहली बार मैंने किया था. Yes. उसका अवार्ड मुझे थाईलैंड, मतलब जो केस मैंने फ्री में किया था. Yeah. थ्रू आफ्टर सीइंग ए वीडियो, वो मुझे ले गया थाईलैंड इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड लेने के लिए. Namaste everyone. Today we are with a very interesting and special personality, Dr. KVNN Santosh Murthy ji, who is a pediatric and burn surgeon. Welcome, sir. Hope you are doing well today. Yeah. Can you please tell me about this beautiful wound healing center right here? What inspired you to build it? Also, when I searched on Google, this was the only center in India. We didn't find any other wound healing center as such in India. What's so special about it? Yes, you are actually right. The advanced wound healing clinics, if you search in Google, in India, this is the only one. After that, the next you will see in Pennsylvania, Germany, US, UK and other parts. So basically I think people are not aware of wounds healing. Not just people, even doctors are not aware of wounds healing. Why doctors are not aware of wound healing? Because wound healing is something which is so dirty and you have to make it normal. You know, so not everybody is interested in healing the wounds. What I mean to say is, even there is no such department by the medical council where wounds are being treated in a separate entity. Right. You will see there is no hospital in India which is exclusively working on wounds. Right. And people often ignore it and they don't consider it as something major, but deep down it's a root cause of many other illnesses. Very true. So what exactly is happening is, लोग कैसे होते हैं, जब तक उनको दर्द नहीं होता ना, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. Yeah. And wounds, when it is acute and chronic, there are two different things. Acute wounds में क्या हो रहा है कि उनको चोट लगती है, they are in pain and agony. They rush to the hospital, meet the doctor, do something and done. Chronic wounds, especially in diabetic foot wounds, Right. the patient don't have sensation, they don't have pain, they walk. ऐसा कहते हैं, the diabetic patients walk till death. Because उनको sensation है नहीं, उन घाव पे ऐसे ही चलते रहते हैं. And they end up into something else. Number one. Number two, the diabetic foot wounds are foul smelling, infected, and वो ठीक होगा नहीं होगा. There is, people don't know. So many things are there. And when it comes to another major aspect, major thing in wounds you see is burns. Right. Burns is something which nobody wants to go near to the patient, don't want to touch them. But so what is happening is, in this fast moving world where people want their wounds or their treatment to be done in a quick way, you know. So जैसे फीवर आ गया, पैरासिटामोल ले लिए, कुछ आ गया कुछ ले लिए, कुछ दवाई ले लिए, कुछ दर्द हुआ इमीडिएट सर्जरी कर दिए, छोड़ दिए. Quick, because they are so much involved in their busy in their regular life,
कि वो ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देना चाहते हैं। हमारा जो AWH का कॉन्सेप्ट है, वी हैव वर्कड ऑन 3 एस्पेक्ट्स because I need to heal them. I don't want them to come back again. So we work on 3 aspects: restoration, rejuvenation, regeneration. RRR. RRR. So what is restoration? Restoration में क्या है? आपकी शरीर में क्या क्या कमियां हो गई थी? जब भगवान ने हमारी शरीर बनाई तो उस शरीर में कितना विटामिन होना चाहिए, 5 ग्राम प्रोटीन्स होना चाहिए, 10 ग्राम ये होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, ऑल दिस थिंग्स राइट, सब मिलके अपनी एक बॉडी बनाई है। एंड जब वो सारे चीज़ें, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब जगह पे अपने अपने जगह पे सही हैं, तो फिर डिसीज आएगा क्यों? जब इम्बैलेंस होता है देन इट प्रोग्रेस इनटू सम साइंस एंड सिम्टम्स व्हिच एंड अप इनटू अ डिसीज। राइट, एंड व्हेन इट कम्स टू रिजुविनेशन, तो हम लोग पेशेंट को पहले रिस्टोर करते हैं कि और ख़राब होने से रुके पहले। उसके बाद जो ख़राब हुआ है उसको ठीक करना है। फिर थर्ड स्टेज में जो ठीक हो गया है वो फिर से रिपीट नहीं होना है। दैट्स हाउ आई डिवाइड द वर्क। लेट इट बी एनी वुंड, लेट इट बी बर्न्स वुंड, लेट इट बी डायबिटिक फूड्स और एनी वुंड इन द बॉडी। डायबिटीज़ आजकल काफ़ी कॉमन है, सो उसका रूट कॉज सिर्फ स्ट्रेस है या कोई अदर फैक्टर्स भी हैं? नहीं, डायबिटीज़ का रूट कॉज देयर आर मेनी थिंग्स, बट द मेजर इशू इज स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस से ही डिसीज स्टार्ट हो रही है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ब्लड सप्लाई कर रही है, आपका खाना पीना टाइम पे सोना, एवरीथिंग डिस्टर्ब होने लगता है। एंड अल्टीमेटली दैट कॉजेस माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी, दैट लीड्स टू क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस में मोस्ट कॉमन क्या है? डायबिटीज़। दैट्स हाउ इट्स हैपेंस। सो अभी होता क्या है, द सेकेंड थिंग, रिस्टोरेशन के बाद सेकेंड थिंग इज रिजुविनेशन। रिजुविनेशन में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? देयर इज नो क्लीनिंग, देयर वोंट बी एनी हीलिंग। ओके, तो पहले क्लीन होना है। दैट्स वेयर तत्या colon hydrotherapy you would have seen in my center. Yes. And infrared sauna is also there. So ये concept मैंने इसलिए start किया था क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ जब तक क्लीनिंग नहीं है हीलिंग नहीं होता। Definitely. So क्लीन करने के लिए क्या चाहिए? Why you need cleaning? उसका रीज़न क्या है कि suppose you have a car, you have a good car, कुछ अच्छी ब्रांडेड कार है आपके पास। तो वो जो ब्रांडेड कार है इसलिए ब्रांडेड है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है और उसका मेंटेनेंस भी हाई है। Yes. एंड यू डोंट वांट अ रिपेयर इन योर कार, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? Clean. अपनी कार की मेंटेनेंस करानी चाहिए। once in 3 months, once in 6 months अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करानी चाहिए। Yeah. राइट, बट हमारा शरीर जो है, दिस इज ऑल्सो आवर व्हीकल, योर सोल इज ट्रैवलिंग इन दिस व्हीकल। हमारी बॉडी की मेंटेनेंस कहाँ है? अपने गट में। यस, सो 70% ऑफ द डिसीजेस स्टार्ट्स फ्रॉम द गट्स। हमारे दादा दादी सब लोग बोलते थे अपना पेट साफ रखा करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया पेट साफ नहीं है। बट आइडियली दैट इज ट्रू। नाउ एलोपैथी, नाउ वी हैव कम इन टू अंडरस्टैंडिंग, वी हैव मेड सो मेनी एडवांसेस। अभी तो गट माइक्रोबायोम पे इतना रिसर्च हो रहा है। इट्स वर्किंग ऑन डिप्रेशन, इट्स वर्किंग ऑन कैंसर्स। गट माइक्रोबायोम का इतना रोल है, आपकी ब्रेन को, आपकी थॉट प्रोसेस को पूरा कंट्रोल में रखता है गट माइक्रोबायोम। और जब वो गट ही साफ नहीं है तो डिसीज तो होना ही है। सो ऑल माई पेशेंट्स हु कम टू AWH सेंटर, मैं सबसे पहले उनका डिटॉक्स कराता हूँ, उनकी गट क्लीनिंग कराता हूँ। ओके, सो तथ्या का जो हाइड्रोकोलोन थेरेपी है वो एक एडवांस टेक्निक है, एंड इज इट इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंशिएंट टेक्निक्स दैट वी यूज्ड टू प्रैक्टिस, और वो किस तरह से काम करता है? नाउ आई टेल यू, इट इज इंस्पायर्ड, डेफिनेटली वहीं से आया है। जो हमारी एंशिएंट टेक्निक है इंडिया में जो होती थी गट क्लीनिंग की, उससे इंस्पायर्ड है, नो डाउट। जल बस्ती एनीमा कहते थे। हाँ, it is inspired from that, no doubt, but it is far more advanced than that. Right. Far more advanced. फर्क क्या है? वो जो हम लेते हैं that, see, it is only cleaning up to the rectum.
बट पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए आपको कोलोनोस्कोपी करा के वॉश कराना पड़ता है, जो भी प्रॉपरली होता नहीं है। एंड दिस इज़ मोर एडवांस, जहाँ पे आपको कोलोन पूरा डिटॉक्स हो जाता है, पूरा क्लेंज होता है विद इन अ स्पैन ऑफ 40 मिनट्स। ओके। एंड द फ्रेशनेस यू फील आफ्टर दैट इज इमेंस। समबडी हैज़ टू एक्सपीरियंस इट, तभी उसका फ़र्क आपको दिखता है। मतलब होता क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वॉल, यू सी अ नाइस वॉल हियर, उस पर मुझे अच्छी पेंटिंग करनी है, तो मुझे पेंटिंग करने से पहले क्या करना है, वो वॉल जो है, जो गंदा है, उसको पहले पूरी अच्छे से क्लीन करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, पूरा रेडी करेंगे, उसके बाद ना पेंट करोगे। राइट। Similarly, your gut is also like that. If you want your disease to be out of your body, what do? You take good food, you take good medicines, but this good food and good medicines will not be absorbed by your body, तो फिर क्या फ़ायदा? राइट। तो वो एब्जॉर्ब तभी होगा जब वो क्लीन होगा। ओके। हमारा बॉडी सिस्टम कैसे रहता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक में फूड आया, डाइजेशन शुरू हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ख़त्म हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ। द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब द फूड वॉट एवर यू आर टेकिंग इन। राइट। एंड जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ही पूरा जैम पैक्ड है, तो तुम कितना भी अच्छा खाओ, बॉडी एब्जॉर्ब कहाँ करेगा? एंड दिस कोलोन हाइड्रोथेरेपी विल make your gut like a reset button, you put it on your phone. So fresh. It helps in many diseases like all this my IBH wounded है. patients, not just gut issues, all my wounded patients, सब लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप wounds में क्यों कर रहे हैं कोलोन थेरेपी? I tell, उसका wound जो हुआ है उसकी gut से start हुआ है। अगर उसका गट ठीक होता, if his gut was absorbing all the nutrients, if his gut was absorbing all the medicines and all the good food he is taking, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती ही नहीं, ब्लड वेसल्स बंद होते ही नहीं, उसका शुगर बढ़ता ही नहीं। ओके। और उसका घाव होता ही नहीं। राइट। सो मैं उसको रिस्टोर करने से पहले उसको क्लीन करता हूँ। तो फुल कोलोन जब क्लीन हो गया, उसका कंप्लीट डिटॉक्स हो, उसके बाद उसको दवाई दूंगा, उसका गट, उसका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद उसको अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट प्लान दूंगा, वो उसके हिसाब से काम करेगा। Which means ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, आई थिंक नेसेसिटी है आज के ज़माने में। यू डोंट वांट अ डिसीज, क्लीन योर गट्स। राइट। यू आर ऑलरेडी डिसीज्ड, क्लीन योर गट। You have recovered from a disease, you don't want a disease again, keep your gut clean. राइट। सो एक तो हमारा ये जो कोलोन हाइड्रोथेरेपी, इसके अलावा क्लीनिंग के लिए, क्लिनजिंग के लिए, डिटॉक्सिफाइंग के लिए फार इंफ्रारेड सोना भी हर्ड इज वेरी गुड। फार इंफ्रारेड सोना इज वेरी पॉपुलर अब्रॉड। ओके। इंडिया में उसका कल्चर अभी उतना ज़्यादा आया नहीं है। हाँ, कुछ वेलनेस सेंटर्स वाले यूज़ करते हैं, बट मेडिकली हॉस्पिटल्स में उसका अभी उतना कल्चर आया नहीं है। बट आई टेल यू द डिफरेंस कहाँ आती है। जैसे आप घर में हम लोग स्टीम लेते हैं, तो भाप जो जनरेट होता है वो आपके स्किन पोर्स में से स्वेट को निकालता है। राइट। एक्चुअली यू आर डिटॉक्सिफाइंग, बट द एक्चुअल टॉक्सिन्स आर डीप टू योर स्किन टिश्यूज, डीप इनटू द सॉफ्ट टिश्यूज। सॉफ्ट टिश्यूज में क्या क्या आता है? आपके फैट, मसल्स एंड ऑल, है ना। सो फार इंफ्रारेड का और रेगुलर स्टीम, of course it is inspired from that. This far infrared has a deeper penetration. Okay. It goes deep inside your skin and up to the the bones. subcutaneous fat. फैट लेवल तक जाता है और डीप जाता है, जहाँ जहाँ फैट नहीं है वहाँ पे बोन तक टच करेगा। It's not even harmful, right? It's very beneficial for the skin. 100% beneficial. लाइट थेरेपी एक होती है। With light therapy, many people heal them. एक वेवलेंथ होती है जो हमको हील करेगी। Every color has a different thing. Right, And far infrared में क्या होता है? The heated temperature के साथ जब वो infrared light जाती है, especially इनका जो डिवाइस है, इसमें क्या होता है? There is a wall impregnated with magnesium. Okay. And the heat which is getting generated, जो far infrared light आ रही है, वो magnesium के साथ लेके तुम्हारे स्किन के डीपर टिश्यूज तक पहुंचती है। और जब ये एंटर करती है तो वहाँ से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं इज फार 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 रिजुनेटिंग देन द रेगुलर स्टीम विच वी टेक। Okay.
इंटरेस्टिंग. सो इसके तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पेशेंट्स को हमने पूरा कोलॉन डिटॉक्स किया, राइट. उसके बाद हेड टू फुट इंफ्रारेड दे के उनको पूरा डिटॉक्स किया. सो वी आर डिटॉक्सिंग हिज बबल्स, वी आर डिटॉक्सिंग हिम एज ए होल, द पेशेंट एज ए होल, स्किन, द वे ऑर्गन्स, ही इज एवरीथिंग. रिजुवनेटिंग. या. उसके बाद तुम अपना मेडिसिन दो, उसके बाद तुम उसका डाइट प्लान दो, उसके बाद उसका सर्जरीज करो, उसका वुंड हीलिंग का काम करो, वो काफ़ी बेटर रिजल्ट्स देता है. इट इज़ नॉट गिविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, बट इनडायरेक्टली इट इज़ preparing yourself for the disease to be treated. Right. So these two are wonderful things which I think everybody should incorporate in their daily life. Like I said, if you don't want a disease, लेना है. If you are diseased, तो ठीक होने के लिए लेना है. Future में नहीं आने के लिए फिर You have लेना to है. take it, So everybody yes. needs this. This is the need of the hour. Because हम लोग जितने स्ट्रेस में हैं, जितने टॉक्सिन्स हैं, जितना 100 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों का खाना अलग, उनका पानी अलग था, उनकी एनवायरनमेंट में जो सांस लेते थे, द एयर वाज डिफरेंट, और उन लोगों को इतना जॉब स्ट्रेस नहीं था, इतने डिसीजेस भी नहीं थे. नाउ व्हेन यू आर एट दैट स्टेज, हमारी मेंटेनेंस बढ़ गई है. उसके लिए कोई तो हमारे रिपेयर अगर तभी होगा जब अपनी मेंटेनेंस सही है, तो रिपेयर की जरूरत ही नहीं. राइट. Right. Wonderful. It was wonderful talking to you. We had a very good time in your center as well. बहुत सुंदर है, एनर्जी ऑरा बहुत अच्छा है आपके सेंटर का और आपका भी सर. थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट्स दैट यू हैव गिवन योर टाइम. आई होप टू सी यू वेरी वेरी सून. हीलिंग सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होती, हीलिंग इज़ ऑल्सो एनर्जेटिक. तो जब हम हमारा गट क्लीन करते हैं या स्किन को क्लीन्स करते हैं, जैसे कि हमने बात किया थेरेपीज़ के बारे में, इसी तरह एनर्जेटिक क्लीनिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पिरिचुअल हीलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच happens through meditation, through yoga, through mindfulness. And उसी के रिलेटेड आज का हमारा सेशन था. आई होप ये हेल्पफुल रहा हो आप सबके लिए भी. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस ऑल हियर. आपका सेंटर बहुत सुंदर है. द ऑरा, द वाइब इज़ ब्यूटिफुल, एज वेल एज योर वाइब इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी ब्यूटिफुल. वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम हियर. थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑल हियर, एंड आई होप टू सी यू वेरी सून.